Good morning, friends. Uh, Today we will discuss ADC means analog to digital conversion. Okay, जो भी एनालॉग सिग्नल होता है, दिस इज द एनालॉग सिग्नल. Okay, so this is analog signal. If we want to convert this analog signal in digital form, this is analog and this is digital. Okay, so if you want to convert analog into digital, then we use analog to digital converter IC, analog to digital converter IC, and this IC number is 0808. Okay, or 0809. Okay, if you want to convert this digital to analog, okay, digital to analog, so there are DAC, digital to analog conversion, 0808 ADC, 0809, it is also for ADC. Okay, and for conversion of DAC we use basically both the ICs. Okay, so this is first concept, analog to digital and digital to analog. Okay, so each IC for analog to digital conversion, it having some features. So we see this photo, these features. Okay, so the features of ADC 0808 and 0809 is the same. Okay, so first feature is that it having 8-bit successive approximation of DAC. So it work on 8-bit. Okay, so data generally data, it is a combination of 8-bit. Okay, so successive approximation means conversion of analog to digital, it is possible for 8-bit data. And this ADC, it is a 8-channel multiplexer with address logic. Okay, मल्टीप्लेक्सर्स होगा आपने मल्टीपल इनपुट कॉमन आउटपुट मक्स जो रहता है, तो वो उसमें मल्टीप्लेक्सिंग भी है. बाद में कन्वर्शन टाइम 100 माइक्रोसेकंड, मीन्स जो भी आपको एनालॉग से डिजिटल में जो भी डाटा कन्वर्ट करने का है उसको 100 माइक्रोसेकंड में वो कन्वर्ट कर देगा. ओके, 100 माइक्रोसेकंड कन्वर्ट कर देगा. बाद में है eliminate the need of external zero and full scale adjustment. जो भी मतलब फुल स्केल एडजस्टमेंट मतलब जो भी एनालॉग से डिजिटल में गया तो डेटा का जो एडजस्टमेंट है वो फुल स्केल में हम इसमें कर सकते हैं. बाद में easy to interface to all microprocessor, this is compatible with all other microcontrollers. Okay, output meet TTL voltage level specification. TTL means transistor logic. So transistor logic base, all the specification can be meet by using this ADC ICs. Then 0 volt to 5 volt input range with simple 5 volt voltage supply, low power consumption. 0 से 0 to 5 वोल्ट के बीच में काम करता है और इसका जो भी पावर कंजम्पशन वो क्या है, लो है. ओके, और ये जो जनरली 15 मिलीवाट पे काम करता है. ओके, तो ये हो गया आपका एनालॉग डिजिटल कन्वर्शन का फीचर. बाद में हम इसकी देखेंगे कि व्हाट आर दी बेसिक diagram pin configuration. Okay, so there are total 26 pin IC. First in input 1, input 3, input 4, input 5, input 6, input 7, then start, then end of conversion, then 2 to the power of -5, this 8 number pin, then output enable, then clock, then VCC, then V reference. Okay, then ground, then 2 to the power -7, -6, V reference, 2 to the power -8, 4, 3, 2, -1. So LSB to MSB, address latch enable, add B, add C, IN0, IN1, IN2,
1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 2 3 input, analog input pin and output pin. So output pin, there are we see the total pin arrangement of ADC. Okay, the most common use ADC is 0808 and its pin diagram shown in figure. Okay, ADC 0808 is a successful approximation type with 8 channel. इसको ये 8 चैनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ये जो डिवाइस है ये ऑल माइक्रो कंट्रोलर से कंपेटेबल है. बाद में द डिवाइस डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल. जो भी आप फीचर्स हमने देखे हैं वो फीचर्स आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि वो इसको एप्लीकेबल है. नए से कोई भी फीचर्स लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है. तो इसमें जो भी हमको एड्रेस लाइन्स है ABC, हमने जो भी एड्रेस लाइन अभी देखी, कौन से एड्रेस लाइन है ABC. तो ये एड्रेस लाइन कैसे सिलेक्ट करने का उसके बारे में भी एक ट्रूथ टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू सिलेक्ट दिस एड्रेस लाइन्स. ओके, सो एनालॉग चैनल IN0, IN1, IN2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so then address line ABC. Okay, LSB to MSB. So we take 4 zeros, 1 2 3 4 and 4 ones, 1 2 3 4, then 2 0 2 1 2 0 2 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1. If A0, A is 0, B is 0, C is 0, then IN is select. Then IN0 is select. When A0, B0, C0, जब A हमारा 0 रहेगा, B हमारा 0 रहेगा, C हमारा 0 होगा, तो उस केस में IN सेलेक्ट होगा. जब A हमारा 1 रहेगा, B हमारा 0 रहेगा, C हमारा 0 रहेगा, तो उसमें IN1 सेलेक्ट करें. ऐसे ही इसका कॉन्फ़िगरेशन ही चलते रहेगा. तो इसको बोलते हैं एड्रेस लाइन्स. ओके, तो these 3 lines are used to select out 1 out of 8 input channel ADC. So by using the select line, by using this is address line, और उसको select line भी कर सकते हैं हम. तो उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो चैनल हमको सेलेक्ट करना है IN0 1 2 3 4 5 up to 7, तो चैनल हम यहाँ से एड्रेस लाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, बाद में ये जो पिन है ALE, इसका फंक्शन बताता हूँ. ये जो ALE पिन है इसको कहते हैं एड्रेस लैच इनेबल पिन. दिस सिग्नल इज यूज टू लैच एड्रेस ड्यूरिंग लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ ALE. ओके, अब इसमें लैचिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है. लैच को क्या कहते हैं, देखो हमारा जो एड्रेस रहता है और जो डेटा रहता है वो कंबाइन चलता है. एड्रेस के साथ ही डेटा चलता है. जैसे एड्रेस चलता है वैसे डेटा चलता है. अगर आपको ये एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस आपको अलग करने का रहा तो हम यूज़ करते हैं लैच. क्या यूज़ करते हैं, लैच. तो ये जो लैच जो रहता है उसको शुरू करना है या बंद करना है, तो इसके लिए हम ALE पिन यूज़ करते हैं. मतलब आपको एड्रेस अलग चाहिए, डेटा अलग चाहिए, उस केस में हम यूज़ करते हैं. दिस सिग्नल यूज टू लैच एड्रेस ड्यूरिंग लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ ALE. वो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि address latch enable this pin is also used for conversion of means separation of address lines and select address line and data line as per the requirement. Address latch enable. ओके, सो इसमें ऐसे भी सकते हैं आप 0, जब ALE पिन 0 रहेगा तो लैचिंग काम नहीं कर रहा है, जब 1 रहेगा तो लैचिंग काम कर रहा है. ऐसा इसका मीनिंग हम बता सकते हैं. बाद में SOP मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन. दिस सिग्नल इज यूज टू स्टार्ट द कन्वर्शन ऑन अ फॉलिंग एज, दैट इज हाई टू लो और ऑफ सॉप पल्स एंड रिसेट SAR रजिस्टर ऑन लो टू हाई ट्रांजिशन. अब ये जो पिन है बेसिकली देखो बुक टू बुक दिया रहता है. बुक टू बुक आपको समझना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिया नहीं रहता कि हम यही एग्जाम में लिख सकते हैं. आप इसके जगह पे दूसरा भी लिख सकते हो कि स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन, दिस इज अ स्पेसिफिकली पिन यूज टू कन्वर्शन ऑफ द डेटा
जो भी डेटा आपको स्टार्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी हम एसओसी यूज पिन यूज़ कर सकते हैं। इसका आप वन लाइन में शॉर्ट भी लिखे तो भी आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो जनरली ये बेसिकली जो पिन है ये किसके लिए यूज़ करता है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन यूज़ करता है। बाद में है आउटपुट इनेबल। दिस सिग्नल, देखो, दिस सिग्नल शुड बी हाई टू रीड डेटा फ्रॉम डेटा पिन्स D0 to D7। अब ये जो डेटा पिन्स आते हैं D0 से D7 मतलब चैनल्स की पिन्स होंगे, तो उसका जो डेटा है वो रीड करने के लिए हम ये पिन यूज़ करते हैं, आउटपुट इनेबल। ओके, देखो ये पिन आउटपुट इनेबल की पिन नहीं थी, वो 9 नंबर की पिन है, ये जो 9 नंबर की पिन, ये जो आउटपुट इनेबल है, ये आउटपुट इनेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, टू रीड डेटा फ्रॉम डेटा लाइन्स। जो भी डेटा लाइन्स है, ये डेटा लाइन्स है, ये जो डेटा लाइन्स है इसके जो पिन्स हैं वो रीड करने के लिए हम ये पिन यूज़ करते हैं। ओके, बाद में एंड ऑफ कन्वर्शन। देखो मैंने बोला स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन, एंड ऑफ कन्वर्शन। मीन्स स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन मतलब क्या है बेसिकली, कि आपको जो भी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने का है तो स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन, और अभी आपको एनालॉग डिजिटल कन्वर्शन एंड करने का है तो एंड ऑफ कन्वर्शन। ओके, देखो EOC है, एंड ऑफ कन्वर्शन। दिस पिन गोज हाई आफ्टर द एंड ऑफ कन्वर्शन। मीन सिंपल है कि भाई आप जब स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, इसमें दो केस रहती है, 1 और 0। ओके, 1 मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन शुरू है, 0 मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन नहीं है। बाद में एंड ऑफ कन्वर्शन। 1 मतलब क्या, एंड ऑफ कन्वर्शन हो गया है, 0 मतलब क्या, एंड ऑफ कन्वर्शन नहीं हुआ है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 का मतलब है कि स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन शुरू हो गया है, और 0 का मतलब होता है कि स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन हमने सिलेक्ट नहीं किया है, और एंड ऑफ कन्वर्शन 1 रहेगा, इसका मीनिंग है एंड ऑफ कन्वर्शन हो गया है और शुरू है, और 0 का मीनिंग है कि एंड ऑफ कन्वर्शन हमको नहीं करना है। तो इसमें 1 और 0 ये दो लॉजिक यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं। बाद में देखो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, और ये जो क्लॉक है, क्लॉक में देखो 10 नंबर की पिन है, ये 10 नंबर की पिन क्लॉक की पिन है। सो अब आपको यहाँ पे डेटा आपको स्टार्ट करना है, एंड करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है, तो इसको कुछ पल्सेस लगेंगी। तो वो जो पल्सेस हैं वो पल्सेस हम क्लॉक से लेते हैं। एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस आर गिवन फ्रॉम ADC। तो क्लॉक से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए और डेटा रिसेप्शन करने के लिए। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन ये हो गया कि ADC 00 बेसिकली क्या होता है। ओके, सो आपको समझ गया। बाद में अपन देखेंगे इंटरफेसिंग, इसका हम इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। ओके, सो हम इंटरफेसिंग का थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेंगे इसके बारे में। देखो ये आपको डायग्राम दिख रही होंगी, इंटरफेसिंग ऑफ DAC 0808। ओके, सो ये जनरली एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, डायग्राम्स इतने कॉम्प्लेक्स वे में आते हैं कि उसको पेज पे ड्रॉ करके आपको बताने में मतलब वो जो हम यहाँ पे जैसे क्लॉक, वी रेफरेंस, ये जो सिग्नल हम जैसे देख रहे हैं वैसे हम प्रैक्टिकली पेज पे ड्रॉ करने के बाद हम वो पर्टिकुलर देख नहीं सकते, क्योंकि हाथों से मिस्टेक हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ये क्या कर रहे हैं कि जो भी डायग्राम्स है वो डायरेक्टली हम बुक पे से ले रहे हैं, क्योंकि बुक्स में आपको सिंप्लिसिटी मिलेंगी और आप अच्छे से उसको समझ सकोगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बुक का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देखो कि ये तुम्हारा हो गया माइक्रो कंट्रोलर, ये हो गया ADC। डायरेक्ट डरने की बात नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि यहाँ पे जो भी कनेक्शन की XTL1, XTL2, VCC, EA, RST, जो भी आप अभी तक देखे होंगे, ये साइड में जो भी लगाते हैं वो आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, देखो अभी यहाँ पे नॉच नहीं लगा, यहाँ पे आप नॉच भी लगा सकते हो, ऐसा गोल करके यहाँ पे नॉच भी लगा सकते हो। ओके, नॉच मतलब नॉच का मीनिंग क्या रहता है, कोई भी आईसी को नॉच रहता है ऐसा, उसका मीनिंग ये रहता है कि यहाँ से आईसी आपकी स्टार्ट हो रही है, तो वो भी नॉच आप लगा सकते हो। तो ये इस पार्ट में जरूर डरने की बात नहीं, ये पार्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी आपको रहा। तो आप कोई भी इधर की जो पिन है वो भी डाल सकते हो इसमें, या सिंपल क्रिस्टल ऑसिलेटर, VCC
और ये जो मुझे पॉजिटिव सप्लाई और एक ग्राउंडिंग भी किया तभी भी चलेगा, लेकिन थोड़े से अच्छे मार्क्स होना चाहिए, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं थोड़े से उसको और अट्रैक्टिव करते हैं। तो जनरली देखो कि अब इसका पिन 1.0 है वो एस ओ क्यू गया है, मतलब ये ऐसे कनेक्शन आपको करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होगा। ठीक है, ये जो 1.0 है पोर्ट 1.0 की जो पिन है एस ओ क्यू गए हैं, पोर्ट 1.1 की पिन ए एल ई को गई है, और ए एल ई से ही इनपुट लेके ओ ई को गई है। ओके, 1.5 की पिन ई ओ सी को गई है, 2.7 DB7 MSB DB7 को गई है, 2.6 DB8 DB6, ये DB5 DB4 DB3 DB2 DB1, फिर 2.0 की पिन DB0 को गई है, मतलब LSB टू MSB, LSB में लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ओके, 1.2 जो पोर्ट है वो जाएगा ए को, बी को, जो सिलेक्ट लाइन हमने टेबल देखा था। ओके, बाद में ये 5 वोल्ट VCC दिया है, ये ग्राउंड दिया है। ओके, बाद में ये जो भी आपको एनालॉग इनपुट रेंज आपको देना है, एनालॉग सिग्नल देना गए, तो इसके लिए ये IN0 टू IN7 ये हम जनरली यूज़ करते हो। तो ये इसका बेसिकली क्या है, इंटरफेसिंग अरेंजमेंट है। ओके, तो आपको ये होमवर्क है कि आपको ये इंटरफेसिंग अरेंजमेंट अच्छे से ड्रॉ करना है, और मुझे आपका ये होमवर्क है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।